Siddhi, is the screen visible to all of you? Okay. So we are doing chapter 10, and in chapter 10, we have to do training and doping in sports, right? Yes. Am I audible? Yes, sir. So we are doing meaning and concept of training, principle of sports training, warming up and leveling down is not there. Skill, technique, and style is also not there. Concept and classification of doping is there. Prohibited substances and their side effect is also there. And dealing with alcohol and substance abuse is not there. So, meaning and concept of sports training. If we talk about sports, the or training, the word training is not new. People have been using this word since archaic periods. Very long ago, people use this word training to train their troops to fight for their kings. You might have heard about पहले राजा होते थे, उनकी सेनाएं होती थी. सुना आप लोगों ने ना? Yes. Yes, sir. So this shows that training is not new. The training is this word is has been used since archaic period, and uh, this is basically a systematically planned preparation with the help of vigorous exercises. So this is what training is. Training is the basic form of preparation of a sports person. So uh, this is the history of training. Now I'm going to tell you about some definitions given by different people about training. According to Matvejev, sports training is the basic form of preparation of a sportsman. So this is a basic form of preparation of a sportsman. Okay? If you talk about Martin, Martin says that sports training is the basic form of preparation. No, sorry. Sports training is a planned and controlled process in which, for achieving a goal, changes in complex sports motor performances, ability to act, and behavior are made through uh,
measures of content, methods, and organization. According to Harry, sports training is based on scientific knowledge and a pedagogical process of sports perfection, which through systematic effort on psychophysical performances, ability and performance readiness aims at dealing to sports man to top level of performance. So ये है कुछ sports training का अपना definitions. Now there are some principles on which this training is basically dependent on. So principles का मतलब होता है कि किस उस पे जो है training based है. So the first principle is the principle of continuity. Can somebody tell me what is this principle of continuity means? Training should be continuous. Yes, it says that training should be a continuous process. There should be no long period of inactivity. It has been observed that discontinuity of training reduces the physiological capacities of a sports person. So this is why the training should be a continuous process so that the conditioning of muscles is done and the readiness is there. So the interval between the training session should not be maximum and but not too long. तो ये कह रहा है कि थोड़ा बहुत हो सकता है, लाइक अगर मान लो आज मैंने ट्रेनिंग की तो मैं चलो 5 घंटे 10 घंटे की ब्रेक ले सकता हूँ, बट 2-3 दिनों की या 1 वीक 2 वीक की ब्रेक लूंगा तो जो मैंने सीखा वो सब खत्म हो जाएगा. आप समझ रहे हो ना? सिद्धि, शब्द, थैंक यू. ओके, सो ऐसा क्यों होना चाहिए, कोई मुझे बताएगा कि कॉन्टिन्यूअस क्यों होनी चाहिए ट्रेनिंग? हम आज करके 2 दिन 5 दिन रेस्ट करके फिर कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम आएगी? Yes, anybody else who wants to elaborate this, wants to talk on this topic? Sir, we won't improve. We want to improve. Very good. What else? शानू, इसको बोलो थोड़ा धीरे बोलेगा ना, is shouting. Yes बेटा, anybody who can say something about it? किसी को कुछ आइडिया है क्या होगा अगर हमारी ट्रेनिंग में गैप ज्यादा हो जाए तो? What will happen? Anybody who can say something about it? No one? Very good. As expected. So क्या होता है, जैसे हम जिम जाते हैं, हमने बाइसेप्स को बनाने के लिए हम रोज बाइसेप्स के लिए डंबल्स उठाते हैं और एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं. तो क्या होता है, कंडीशनिंग ऑफ मसल्स होता है, मसल्स जो है वो टोन्ड अप हो जाते हैं और उसके बाद ही जो बाइसेप्स है वो हमारे लार्ज होते हैं और वो विजिबल होते हैं. तो ये कॉन्टिन्यूअस है, अगर हम करते हैं फिर नहीं करते हैं, फिर करते हैं फिर नहीं करते हैं, तो जो ग्रोथ होना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं होगा. सेम वे ट्रेनिंग में है. ट्रेनिंग में हम मान लो कि कोई भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेट्स से क्रिकेट की ट्रेनिंग कर रहे हैं, आज हमने बैटिंग के स्किल सीखे, हमने बॉल को टाइम करना शुरू किया. टाइम क्यों करना शुरू किया? क्योंकि the nervous system and the neuromuscular system, the nervous system and the muscular system are interrelated. When the combination of this system is enhanced, the perfection is enhanced. जैसे हम बॉल को सही टाइम पे टाइम करते हैं तो एज नहीं होती बॉल, कैच नहीं होती बॉल, बाउंड्री या 6 के लिए चली जाती है, 4 और 6 के लिए चली जाती है. लेकिन जब हम एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं तो हमारा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो है वो हैम्पर हो जाता है. And because of that, we just cannot perform the specific task in a specific manner. Understood? Understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay, जिनको नींद आ रही है ना, they can leave the class and go. Because I just don't like this type of inactive class where I'm asking 1,000 times
and 2 out of these 13, 14 students comes and say, yes, sir. Rest all of you are sleeping and eating your breakfast. Is it costing something to say yes or no? If you're not understanding, say no. If you understand, then say yes. So this is what this principle of continuity says. Then the principle of overload. What happened when we are training? The load should be involved. Load plays an important role in the enhancement of performance of a person. So whenever you want to enhance your specific performance, the load should be increased gradually to train harder to achieve your goal. So the principle overload states that there should be greater than normal load on the body as required for training adaptation to take place. So training should be increased for improving the performance of sports persons. अगर आपने परफॉर्मेंस उठाना है, इंक्रीज करना है, तो आपको अपने वर्कलोड को, ट्रेनिंग लोड को बढ़ाना होगा. So training load is what? कोई बताएगा मुझे what is training load? What does training load means here? The repetition or the time period. Like मान लो कि मैं 10 डंबल्स रोज करता हूं, तो मुझे वर्कलोड बढ़ाना पड़ेगा to get a good result. So next day I'll have to do 12, 15 or 20 laps or 20 dumbbells. In the same way, the time, अगर मान लो आज मैं 30 seconds के लिए कर रहा हूँ कोई भी exercise, like plank है, plank मैं 30 seconds के लिए कर पा रहा हूँ, तो gradually I have to increase it. हो सकता है पहले दिन 30 seconds हो, दूसरा दिन 25 हो जाए, तीसरा दिन 20 हो जाए, but slowly and gradually the workload has to be increased, whether it's a time slot or the repetition of the exercises. This is workload. Clear है? कोई doubt है किसी को अभी? Sir, I Now, didn't understand load. yes, beta. Anybody wants to ask something? Sir, I didn't understand load. Load. Kanak Yadav, right? Yes, sir. Kanak, what happened is, do you play some games in sports, bache? No, sir. No, you don't play games. Okay, no problem. I'll tell you. Load is the amount of exercises or the amount of load is given to the athlete to train harder to get to achieve the desired goal. अगर मैं बोलूं कि आपको 50 मीटर्स या 100 मीटर स्प्रिंट जो हैं 11 सेकंड्स में करने हैं, तो स्लोली मैं उसको आपको लोड आपका बढ़ाऊंगा. लाइक अभी आपको मैं 20 मीटर भगाऊंगा, 20 मीटर आप करोगे, लेट से 20 मीटर का आपका जो टाइम है वो 4 सेकंड आता है या 3 सेकंड आता है, ठीक है. फिर मैं क्या करूंगा, 25 मीटर भगाऊंगा और कोशिश ये रहेगी आपकी कि आपका टाइम जो है वो 3 से 4 सेकंड के बीच में ही आए. फिर मैं 40 सेकंड्स भगाऊंगा, फिर मैं 50 सेकंड्स भगाऊंगा. तो ये क्या है, 50 मीटर्स बेसिकली, इट्स मीटर्स. So 50 meters, 30, 20 meters, and then 30 meters, then 40 meters, then 50 meters. तो हम क्या कर रहे हैं, हम वर्कलोड बढ़ा रहे हैं. हम वर्कलोड क्यों बढ़ा रहे हैं? हम वर्कलोड इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि आपका एडेप्टेशन हो जाए, आप उस सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म कर पाए. So that is what workload is. या अगर मान लो आप 50 मीटर्स नहीं कर रहे हो, तो मैं आपका टाइम बढ़ा दूंगा. पहले आपको 5 सेकंड्स के लिए स्प्रिंट मरवाऊंगा, then I'll say okay, go for 6 seconds, then I'll say go for 9 seconds, then I say go for 10 seconds, sprint for 10 seconds. तो मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे आपके वर्कलोड को या जो ट्रेनिंग लोड है उसको इंक्रीज कर रहा हूँ. क्यों कर रहा हूँ? ताकि आपका एडेप्टेशन हो जाए. एडेप्टेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंडोरेंस बढ़ जाएगा. समझ आ गया? Yes, sir. Okay. The principle of individual differences. This is also a principle which plays an important role in training. Like every individual is different. So every sports person is different due to individual differences. Each sports person response to exercises or load will definitely vary. So a training program should be modified to take individuals' differences into following consideration. You might have heard about slow twitch muscles and fast twitch muscles. I have taught you this in chapter 3rd. You people remember? So every individual is different. Somebody may have
slow twitch muscles. So those muscles which gets tired slowly. So those children who have slow twitch muscles can do long duration races effectively. So that's the individual difference. Like this child has slow twitch muscles, means he or she may have stamina and endurance to do long duration activity. But the child who is having slow twitch muscles will get fatigued rapidly or quickly. So that child will do sprinting short duration races. So this is individual differences. Same in girls and boys. You can see short put हम करते हैं तो men का heavy होता है और females का light होता है. क्यों? Because of the individual differences. The girls' shoulder are not that strong as the boys or males. या sprinting races है तो मान लो कोई क्वालिफाइंग रेसेस है जिसमें हमने 10 सेकेंड्स रखा है तो गर्ल्स के लिए उस स्प्रिंटिंग रेसेस में हमें 11 या 12 सेकेंड्स रखना पड़ेगा एंड द रीजन बिग द pelvic area of the girls are heavier than the boys, so the sprinting skills of girls are normally lesser than the boys. So there are so many individual differences which can tell you to make a different program of physical education or training program so that they can adopt to it. ठीक है? Yes, sir. The principle of general and specific preparation. See, the preparation is basically depending on two types. जैसे general and अगर हम warming up topic करते हैं ना तो ये हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाता, लेकिन वो topic हमारे में है ही नहीं, कैंसिल कर दिया. General and specific क्या होता है? हम फुटबॉल ग्राउंड में घुसते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं? रनिंग करते हैं, जंपिंग, जॉगिंग, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं ना? तो ये जनरल एक्सरसाइजेस हो गए. जनरल प्रिंसिपल ऑफ जनरल स्पेसिफिक प्रिपरेशन, ये जनरल प्रिपरेशन हो गया जिसमें हमारी ओवरऑल बॉडी की कंडीशनिंग और वार्मिंग अप करनी है ताकि हमारी बॉडी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए रेडी हो जाए. तो अब स्पेसिफिक क्या हुआ? किकिंग द फुटबॉल, ड्रिबलिंग द बास्केटबॉल, टेकिंग लेअप शॉट, पासिंग अंडरहैंड पास, ओवरहेड पास, बाउंस पास, चेस्ट पास. तो ये स्पेसिफिक हो गया. ठीक है? या बैडमिंटन में हो गया या कोई और गेम्स में. अब स्पेसिफिक भी तो होता है ना, जैसे बॉलिंग करना है. बॉलिंग क्या है? स्पेसिफिक एक्सरसाइज है ना? So the principle of general and specific preparation is also important. Like the general and specific preparation is to be done for getting a good result. So the performance will be better if the base is better. The general preparation increases the functional capacity of all the body system. जैसे कि मैंने बोला कि general preparation makes the body ready for the specific preparation, and specific preparation is the further required to improve those systems and organs on which the performance of sports person directly depends. For example, the speed improves through running will also be beneficial in football. तो ये कह रहा है कि अब रनिंग जो है स्पेसिफिक जनरल है कि हम दौड़ रहे हैं, लेकिन वो फुटबॉल में स्पेसिफिक में भी काम आएगा. तो इसलिए द प्रिंसिपल जनरल स्पेसिफिक प्रिपरेशन शुड ऑल्सो बी टेकन केयर. वी शुड बी doing such exercises in which we are doing the general preparation as well as the specific preparation too. Clear है? The principle of progression. Progression का मतलब होगा progressive. Progressive का मतलब होता है थोड़ा ज्यादा 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 ज्यादा. तो इसी तरीके से कह रहा है कि according to this principle, the load should be increased gradually or should not be increased too rapidly. क्योंकि अगर हम बहुत जल्दी बहुत ज्यादा लोड बढ़ा देंगे, जैसे मान लो कि आप 10 मीटर भाग रहे थे, अब मैं कह रहा हूं आप 100 मीटर भागो, तो आप भाग पाओगे? फटीक हो जाएगा, ओवरलैपिंग ऑफ मसल्स हो जाएगा, क्रैम्प्स आ जाएंगे. होगा कि नहीं होगा ऐसा? Yes, sir. So this principle says that the load should be increased rapidly, not too rapidly, but gradually, so that the adaptation can be done and we can get used to it and perform excellent into the upcoming task. Exercises having the target zone can be dangerous. The principle of progression also makes us realize the need of proper rest and recovery. The constant overload can lead to exhaustion and injury. वही जो मैंने बोला कि अगर हम बहुत ज्यादा करेंगे तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे
फटीक हो जाएगा, ओवरलैपिंग ऑफ मसल हो जाएगा, इंजरीज हो जाएंगी. So इसलिए the principle of progression should be taken care and the load should be increased gradually, slowly and slowly, so that the adaptation can be done and we do not feel fatigue and get tired and get injured. Okay, principle of progression is done. The load should be in a progressive manner. Like अभी हम 25 मीटर कर रहे थे, then we'll do 30 meters, then 40 meters, then 45 meters, like that. Understood? Okay, the principle of specificity. मान लो मैंने बैडमिंटन खेलना है, स्पेसिफिसिटी क्या हुआ, मैं अपने उस आर्म या उस हैंड का एक्सरसाइज करूं जिससे मैंने करना है. या लेग्स में ना हमारे स्टेप्स होते हैं, हम कभी आगे जाएंगे कभी पीछे जाएंगे, तो लेग्स की भी एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है. बॉलिंग करनी है तो शोल्डर्स के एक्सरसाइजेस करने पड़ेंगे, रनिंग करनी होती है, बॉडी की साइड स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी ताकि उधर के मसल्स जो हमारे रेडी हो जाए. तो वही कह रहा था, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी state that exercising a certain part of the component of the body primarily develop that part. It means that to become better at a particular exercise or skill, you must perform that exercise or skill. So for example, a runner should get trained by running, a swimmer should get trained by swimming, a cyclist should be doing cycling. तो इस तरीके से जो भी आप स्पेसिफिक गेम करने वाले हो, उधर वो बॉडी पार्ट या वो मसल्स या वो ऑर्गन्स जरूर हमारे एक्सरसाइज करने चाहिए. द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट. आई एम टीचिंग एंड यू आर ईटिंग योर पराठा, यू आर नॉट एक्टिवली taking part into this teaching and learning process. So the learning process will become very difficult for you. In the same way, the active involvement plays an important role for both the learners and the teacher, the coach, trainer and the learner. So both should be actively participating in the training program to enhance one's performance. The principle of variety. See, training and coaching is sometimes becomes very boring. So you should add variety into it so that it can be made more interesting and some changes like sometime we are playing basketball, sometime we are playing football, sometime we are doing sprinting, sometime we are doing planks, sometime we are doing competition in planks, sometime we are doing sit-ups. लेकिन हमारा गेम क्या है, फुटबॉल है. हम ये क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी आर एडिंग वेराइटी टू द कोचिंग. एक ही चीज रोज करे, रोज ही बस फुटबॉल को किक मारे, तो विल गेट बोर्ड ऑफ डूइंग द सेम एक्टिविटी डेली, isn't it? So this Yes, is why sir. this variety is needed. The principle of warm up and cool down. Warm up and cool down plays an important role in our daily life or our sporting life. So one should take care of this warming up and cooling down. Warming up is basically increasing the body temperature by doing some specific exercises so that the body can be made ready to take the upcoming task. After doing the warming up, the body temperature increases. I already have added that when the body temperature increases, the heart rate automatically increases. It means the heart is also at stress. Are you getting it? So in that case, you have to bring the body temperature to its normal state, and that is called cool down, limbering down, or cooling down. So this is why it is important, because when the body temperature increases by doing any specific exercises or warming up or playing games and sports, the heart rate also increases. So to bring the body temperature to its normal state so that the heart also come to the resting position, then the cooling down exercises should be done. Is it clear? अब क्या हुआ, हार्ट रेट बढ़ गया तो ज्यादा से ज्यादा जो ब्लड है या ऑक्सीजन मसल. Arav, you saying something? Cooling down, stretching exercises, slow jogging, or yogasanas. बेसिकली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं ताकि जो भी मसल्स हमारे पम्प्ड अप हो गए होते हैं उनको दोबारा से
रेस्टिंग पोजीशन पे पहुंचा दिया जाए. ओके बेटा. Now the next is the rest, the principle of rest and recovery. रेस्ट क्या होता है? जब भी हम एक्सरसाइजेस करते हैं हमारी बॉडी थक जाती है, हमारे मसल्स फटीग्ड हो जाते हैं. ठीक है. उसमें क्यों होता है? क्योंकि केमिकल चेंजेस होने लगते हैं, लाइक एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉस्फेट, सल्फेट, यूरिक एसिड, बहुत सारी चीजें एक्यूमुलेट हो जाती है जिसकी वजह से हम थका हुआ महसूस करते हैं, है ना. तो रेस्ट करने से क्या होता है? वी गेट रिजुनोवेटेड, मींस द मसल्स आर रेडी अगेन टू परफॉर्म द अपकमिंग टास्क. सो रेस्ट इज इंपॉर्टेंट. रिकवरी क्या होता है? व्हेन वी डू एक्सरसाइजेस, in that phase we may meet with some injuries, so we should take proper recovery from those injuries, or you can say we should not play while we are injured. So we should rest so that we can make the muscle efficient or stronger enough to perform the upcoming task. So the training program should be conceived in such a way that there should be proper rest and interval between training activities. आज मैंने आपने 500 मीटर की स्प्रिंट की या 400 मीटर की स्प्रिंट की, तो आपको जैसे जितना देर एक्सरसाइज किया उसका डबल टाइम रेस्ट करना चाहिए, स्पेशली इन इंटेंस एक्सरसाइजेस. इज इट ओके? समझ आया? नाउ द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरिंग रिजल्ट. देखो क्या होता है, हमारा जो एपेक्स एम है वो है अटेनिंग गुड रिजल्ट्स. हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी गेम या कोई भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज द रोल, व्हाट इज द एम? टू अचीव अ गुड रिजल्ट. यही है ना. सो दैट वी कैन पुट गुड परफॉर्मेंस और better performance in the competition. So we should be doing exercises or training in such a way that it guarantees a good performance, and so that you can achieve your desired goal. The principle of cyclicity. So the principle of cyclicity says that the training should be done according to the skill which you want to learn. There are three types of cycles. The one is the mesocycle. Mesocycle is one is the macrocycle, the bigger cycle, that is 3 to 12 months. So the training program which runs from 3 longest program होता है उसको हम मैक्रो साइकिल बोलते हैं, जो 3 से 12 महीने तक की ट्रेनिंग होती है. उसके बाद मेसो आता है जो मिड का होता है, 3 to 6 वीक्स की ट्रेनिंग, 3 to 6 वीक्स की ट्रेनिंग होती है. और उसके बाद माइक्रो होता है जो सबसे छोटा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, दैट इज 3 to 10 days. ठीक है. पहले मंथ है, मैक्रो इज 3 to 12 months, मेसे इज 3 to 6 weeks, और माइक्रो इज 3 to 10 days. क्लियर है? सर प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन जो होते हैं वो इसमें से मैक्रो करते हैं, तो उसके बाद क्या ब्रेक लेते हैं फिर? मैक्रो इज व्हाट macro is basically, it's not about taking breaks and exercising. It's about the skill, what type of skill you're going to learn. If I say you're going to learn skating, it cannot be a microcycle, because in 3 to 10 days you just can walk on skates. Then it cannot be a mesocycle also, because in 3 to 6 weeks, like 1 month, 1.5 महीने में, you can just learn the rolling. So if you want to become a good skater, then you have to go for a macro cycle, that is 3 months to 12 months. It can be 3 months or it can be 10 or 12 months. So in between those months, you can become a very good skater, and you can also participate in some nationals after getting selected. So this is what, it depends on the skill, what type of skill you are going to learn. अगर मान लो आपको स्मैश सिखाना है बैडमिंटन में, तो 3 days to 10 days के भीतर वो स्किल आप सीख सकते हैं, है ना? Yes, sir. Sir, But so पूरा this बैडमिंटन principle is के based on सारे learning the skills- skill, not playing for the sport. Yes बेटा. Sir, this principle is based on learning a skill.
Yeah, this principle is basically based on learning a skill, or it can be sports also. If you read this, sports training program are developed through various training cycles such as macrocycle, mesocycle, and microcycle. Macrocycle is longest cycle, the duration of 3 to 12 months. Mesocycle is medium, that is 3 to 6 weeks, and microcycle is shortest duration cycle, that may be 3 to 10 days. So it is basically learning a skill or learning a sport. It depends on what type of skill you're going to learn, what type of sports you're going to learn. So this cycle depends on that. Okay. So basically this principle says that whatever you are going to learn, it can be learned into these three phases. That is micro, meso and macro. छोटा, medium और बड़ा cycle. समझ आ गया? Yes? Any doubts? No, sir. Ensuring results. Beta, simple है that whenever you are taking training, the training should be in such a way that it ensures results. मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं, मेरा रिजल्ट ही नहीं आ रहा, तो उस ट्रेनिंग का कोई फायदा है क्या? ट्रेनिंग क्यों करना है मुझे? Why to attain a skill? To do better in our sports, to achieve a result. यही है ना? मैं रोज 3 बजे बैट बॉल या अपना क्रिकेट पैक उठा के रोज जाता हूं वेंकटेश्वर स्कूल, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो रोज जा रहा हूं और जब मेरा मैच आता है तो मैं 0 पे आउट हो जाता हूं. हर बार ऐसा होता है. Is that training ensuring results? No. Means what? That training is useless. So this, the principle of ensuring results says that whatever you are training, you are taking, it should ensure a definite result. अगर बहुत अच्छा नहीं तो अच्छा तो हो कम से कम. चलो सेंचुरी नहीं लगी, बस 30, 40, 50 रन तो बने. बॉलिंग कर रहा हूं तो 2-3 विकेट तो निकले. समझ रहे हो ना आप? तो ये है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरिंग रिजल्ट, that the training should ensure some results. It should not be goes in vain. साल भर ट्रेनिंग की, कुछ रिजल्ट नहीं आया, कुछ अच्छा नहीं किया हमने, तो क्या फायदा उस ट्रेनिंग का? तो यही कह रहा है कि जो ट्रेनिंग है इन चीजों पे डिपेंडेंट होनी चाहिए कि कंटिन्यूअस प्रेसेस हो, जो लोड है ओवरलोड जिसको बोलते हैं उसको ढंग से दिया जाए ताकि एडेप्टेशन टू द एथलीट हो जाए. मान लो एक नया बच्चा आता है, उसको मैं सीधा बोलूं चलो आज आप 20 राउंड रनिंग करके आओ. Is it a good idea? Is this the good proper method of giving load to the child? No, उसके मसल्स यूज नहीं थे, उसको लोड ज्यादा दे दिया, वो कल फटीक हो जाएगा, 3-4 दिन उसके पैरों में दर्द रहेगा, हो सकता है उसकी तबीयत भी खराब हो जाए, वो आएगा ही नहीं फिर अगले दिन. मैं क्या कर सकता हूँ? आज मैंने उसको 2 राउंड रनिंग किया, फिर मैं कल उसको बोलूंगा कि 2 राउंड कर, परसों मैं बोलूंगा चलो 3 राउंड करने की कोशिश करो, 4 राउंड करो, 5 राउंड करो. Slowly I'm increasing the workload of the child so that the adaptation can be done. Adaptation क्या होता है? What is adaptation? Adaptation किसी को पता है? एम्फीबियंस में फ्रॉग का आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा आपने साइंस में. Sir, to change according to the sport. To change according to the environment. पर यहाँ adaptation का मतलब है to change according to the sport. Yes, Kanak is right. So changing the muscle or making the muscle efficient enough to perform the sports is basically adaptation. थोड़ा वर्कलोड बढ़ाते उसको एफिशिएंट कर देंगे ताकि वो कोई भी अब अपकमिंग टास्क हो तो वो रेडी हो, चाहे 100 मीटर स्प्रिंट हो या 200 मीटर स्प्रिंट हो. हमने इतनी ट्रेनिंग कर दी कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 100 मीटर भागना है कि 200 मीटर भागना. समझ गए बच्चे? क्योंकि उसके मसल्स रेडी हो गए. दैट इज कॉल्ड एडेप्टेशन. चेंजिंग oneself according to the surrounding and environment. उसके बाद हमारा था principle of individual differences. We should take care of the individual differences as somebody short, tall, somebody's pelvic is heavy, somebody has slow twitch muscle, somebody has fast twitch muscle, somebody has big muscle, somebody has small muscles. So according to individual differences, the training program should be scheduled. The principle of general specific preparation. We should be training according to the general specific preparation so that
this principle can be achieved. The principle of progression. The workload should be given in such a way that it should be in a progressive manner, like lightweight, medium weight, then the heavy weight, so that that patient process can be done. The principle of specificity. Specific body parts or muscles can be toned up or used to increase the skill of the person. Then the principle of active involvement. One should be actively participating into that training program to achieve heights. The principle of variety. The coaching and training is a very boring process at times. Mm, so we should be involving or including or adding some varieties to our games and sports. जैसे कि मान लो मैं रोज ही फुटबॉल कर रहा हूँ तो आप नहीं खेल सकते, उसमें मैं कभी गेम्स खेल दूं, कभी डॉज बॉल खेल लिया, कभी डॉग एंड द बोन खेल लिया. तो इस तरीके से रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करने से वेराइटीज ऐड होता है. या हमने मान लो कि फुटबॉल ही करना है, स्प्रिंट गेम ही है, तो चेजिंग गेम्स खेल लेंगे. चेजिंग गेम्स आपको पता है फुटबॉल में चेजिंग करनी पड़ती है जब कोई बॉल लेके भाग रहा होता है, या कोई आपको बॉल छीनने के लिए आ रहा था तो आपको तेज भागना पड़ता है, होता है ना ऐसा. तो हम चेजिंग गेम्स खेल लेंगे. चेजिंग गेम्स खेलने से जैसे हम पहले बचपन में खेलते थे, वी पोस्ट लेटर टू माय फादर ऑन द वे आई ड्रॉप्ड इट, है ना, इफ समबडी गेट प्लीज, कैसे करके था ना एक गेम हमारा. यस, तो वो चेजिंग गेम्स है, वो हमारे को फुटबॉल में भी हेल्पफुल हो जाएगा. देन द प्रिंसिपल ऑफ वार्मिंग अप एंड कूल डाउन. हमारे बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज कर देना चाहिए ताकि मसल की एफिशिएंसी बढ़ जाए और हमारे को इंजरीज ना हो. वार्मिंग अप हो गया, क्योंकि हमारे मसल का टेम्परेचर बढ़ जाता है, हार्ट रेट ज्यादा हो जाता है, ब्लड का फ्लो मसल में, टिश्यूज में और कैपिलरीज में ज्यादा हो जाता है. तो हमें कूल डाउन एक्सरसाइजेस करनी चाहिए ताकि जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो फास्ट की जगह नॉर्मल हो जाए, हार्ट रेट नॉर्मल हो जाए, so we cannot get fatigued or we cannot get fainted. The principle of rest and recovery. Rest and recovery plays an important role in one's life because in training, after doing vigorous exercises, we should be taking proper rest, taking care of proper rest and recovery so that the lost, whatever is lost is recalled or recovered. So जो भी एनर्जी हमारी ड्रेन हुई है वो दोबारा से रिस्टोर करके और हम पार्टिसिपेट कर पाए. प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरिंग रिजल्ट्स, मैंने भी बताया कि हमें ट्रेनिंग ऐसी करनी चाहिए कि एक रिजल्ट हमें दे, इंश्योर करे कि हमारा रिजल्ट आए. प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिसिटी. ट्रेनिंग के 3 साइकिल्स हैं, उन साइकिल्स के हिसाब से हमें ट्रेनिंग करना चाहिए. कोई डाउट है किसी को? इज देयर एनी डाउट? तो जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो कौन सी साइकिल से करते हैं ट्रेनिंग? कनक, डिपेंड्स ऑन स्किल्स बेसिकली. जो प्रोफेशनल्स हैं, मान लो कि मैं कुश्ती करता हूँ, ठीक है, यस सर. कुश्ती में मुझे कोई एक स्किल सीखना है. जैसे आपने सलमान खान की मूवी में देखा होगा, वो एक ही दाव मारता है और वो कितने से भी पिछड़ रहा होता है और वो जीत जाता है लास्ट में. तो वो एक स्किल है, स्पेसिफिक स्किल है. उसको सीखने में मुझे ज्यादा से ज्यादा लगेगा तो 3 to 10 days लगेंगे, बिकॉज इट्स अ स्मॉल स्किल विच आई हैव टू लर्न. पर मुझे पूरी कुश्ती के दाव पे सीखने हो, चाहे मैं प्रोफेशनल हूं तो मुझे काफी दिन लगेंगे. इट कैन बी 3 to 6 weeks टू चेक माई ऑल द स्किल्स. अगर मेरा कोच चेक करना चाहता है कि मैं कौन से स्किल में कितना अच्छा हूं, तो वो क्या करेगा, आपकी कमियां नोट डाउन कर लेगा. फिर आपको माइक्रो साइकिल्स में, छोटे छोटे साइकिल्स में, 3 to 10 days के जो साइकिल्स होते हैं, उसमें आपको उन स्पेसिफिक स्किल्स को सिखाएगा. तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, एज इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर. कोई बहुत जल्दी ग्रैस्प करता है, कोई नहीं करता है, तो इट डिपेंड्स ऑन दैट. तो जरूरी नहीं है कि वो प्रोफेशनल है तो वो कितने दिन में करेगा. डिपेंड्स ऑन द स्किल, whether is going to do a particular small scale. आपने पढ़ा होगा फाइन स्किल है, ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, कई स्किल्स हैं. तो कौन सा स्किल वो सीखना चाहता है उस पर डिपेंड करता है. पर ये 3 साइकिल्स में डिवाइड कर दिए गए हैं. तो आपको बस इतना लिखना है कि दिस वार्मिंग अप शुड बी, नहीं क्या था, we are talking about the principle of cyclicity says that the training should be done in 3 cycles. If it's a long duration cycle, we call it mesocycle, macro cycle, that goes from 3 to 12 months of training. Then we go to mesocycle, that is 3 to 6 weeks of training. That is also called medium term cycle or medium time period training. And then is the micro, which is the smallest
training schedule, which is done for 3 to 10 days, in which small skills can be taught. इस तरीके से आप लिख सकते. Okay, Kanak? Yes, sir. Okay. Now, the next is page number 174, concept and classification of doping. मैं चाहता हूं कि ये हम किसी और दिन करें. Or should I finish it? We have 20 minutes to do, because 1 hour की classes. We can finish it if you want to. Yes, sir. Yes, beta. Because I have no idea, because इस year तो अब कुछ plan किया ही नहीं है मैम ने, और next year के लिए भी बताया नहीं. मैं चाहता हूं कि ये finish ही कर दूं, क्योंकि we never know कि आपको पता है स्कूल खुलते ही आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे. तो मैं कर ही देता हूं finish. Concept and classification. Haven't we done this already in first term? No, what Kana? Sir, I guess we have done part of this chapter in first term too. Yeah, these chapters were done. Only two chapters were left. That was 6 and 9. So this also I have taught. These were done in the first term only, but these are the syllabus of second term. Chapter number, if you want to write, you can write 4, 5, 6, 9 and 10 is going to come in term 2, and PG2 we are leaving chapter 5. So 4, 6, 9 and 10. 4 chapters are coming in PG2. 4, 6, 9 and 10. So what do you say? Should I continue with this? Yes, sir. So we can finish it. So that you don't have to bother about that. And if you have any doubts, beta, don't feel कि छुट्टियां हैं तो सर से नहीं पूछूं. I'm there to help you out. Please ask. ठीक है? कोई भी doubt हो, don't go to the examination hall with a doubt, because doubt, always distract your mind. So don't keep any doubt. अब हमने करना वार्मिंग अप, कूल डाउन स्किल, ये सब नहीं है. अब हमारा सिंपल है concept and classification of doping. Concept and classification of doping. Doping क्या है? Doping कब से यूज होता है? Doping में क्या क्या चीजें होती हैं? So doping कह रहा है कि is not new to the people. In ancient Greece, there were specialists who used to offer athletes nutritional ingredients in order to enhance their physical performance. Like in Olympics 3 BCE, the athletes uses mushrooms and opium. Opium अफीम को बोलते हैं, और मशरूम्स तो आप सब जानते ही हैं, आप सब्जी में इसको खाते भी हैं, पॉली बैग्स में पैक मिलते हैं ये. तो मशरूम्स और ओपियम अराउंड 3 BCE गेम्स, ओलंपिक गेम्स, जो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स होते थे 3 BCE में, at that time the specialists used to offer mushroom and opium to their athletes to enhance their sporting performances. In 1 CE, the Greek runners used to drink herbal beverages to increase their strength and become capable to run long distance races. So this, ancient Olympics 3 BC. पहले जो गेम्स होते थे ना, उनको एंशिएंट ओलंपिक्स ही बोलते थे. यस बेटा. आप ये देखो ना, मशरूम जो था आज हम सब्जी की तरह यूज करते हैं, लेकिन पहले मशरूम सबको नहीं मिल पाता था. डोपिंग है क्या? डोपिंग होता है, तब तक डोपिंग क्लासिफाई ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी ना, मतलब. हाँ, तब इसको डोपिंग नहीं कहते थे, लेकिन परफॉर्मेंस इनहांस करने के लिए लोग ऐसी चीजें देते थे एंशिएंट टाइम्स में. तो उसको अभी के हिसाब से तो हम डोपिंग ही कहेंगे ना, क्योंकि उन्होंने अलग मेथड यूज किया टू इंक्रीज द स्पोर्टिंग परफॉर्मेंसेस. They were not just taking their foods, but in spite of taking their foods, they were adding these substances to their diet to increase their sporting performances. That is why we can call it doping. Clear है? तो ये कह रहा है कि during the Olympic Games in 3 BC, people used to take, or
specialists used to give mushrooms and opium to their athletes to enhance their sporting performances. In 1 CE, the Greek racers or Greek runners used to take herbal beverages to increase their stamina and strength and endurance to run long duration races. ये थोड़ा बहुत हिस्ट्री था इसका कि कैसे पहले भी अभी आप 21st सेंचुरी की बात करें तो many athletes have been engaged in taking such substances. Some of them have been tested positive, such as Team Montgomery, ठीक है, Marion Jones, swimmer Michael Phelps. ये लोग थे जिन्होंने अभी 21st सेंचुरी में भी डोपिंग किया था और पॉजिटिव पाए गए थे और उनको निकाल दिया, मतलब दे वर बैंड फ्रॉम प्लेइंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स. क्लियर है? नाउ वी कैन टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डोपिंग. डोपिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? तो डोपिंग इज द वर्ड यूज्ड इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स रेफर टू द सिचुएशन when athletes use prohibited substances or method to unfairly improve their sporting performances. So doping basically is a word which is used when a person is used any unfair means to improve his performance, sporting performances, or to gain a advantage over the fellow competitors. ठीक है, ये है doping. Is it clear? There are some bodies which take care of doping. That is World Anti-Doping Agency. World Anti-Doping Agency is also known as WADA. Doping says that doping is defined as the occurrence of one or more of the anti-doping rules violations set forth in Article 2.1 through Article 2.8 of the code, जिसमें कहता है कि presence of prohibited substances or method. कोई भी प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस जो प्रोहिबिटेड है, जो अलाउड नहीं है, उसका मेथड यूज किया हो या सब्सटेंस यूज किया हो तो डोपिंग में आएगा. यूज और अटेम्प्ट टू यूज प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस और मेथड, या तो यूज किया हो या कोशिश कर रहे हो लेने की. रिफ्यूजिंग टू सबमिट सैंपल्स, अगर आप सैंपल्स कई बार रिमाइंडर के बाद अगर आप सैंपल्स नहीं देते हो तो ये माना जाएगा कि आपने डोपिंग किया, तभी तो आप सैंपल नहीं दे रहे हो. Failure to file athlete whereabouts after being notified. Tampering with any part of the doping control process. जैसे क्या करते हैं लोग, अपने जगह किसी जानवर का ब्लड दे देते हैं या किसी दोस्त का ब्लड दे देंगे, तो ये होता है टेम्परिंग विद डोपिंग. पोसेशन ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस, या कोई भी सब्सटेंस जो प्रोहिबिटेड है आपके पास मिला, आपके बैग में मिला, आपने उसके पोसेशन किया, तो आपको कहा जाएगा कि आपने डोपिंग की है. ट्रैफिकिंग और ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस और मेथड, कोई भी प्रोहिबिटेड सब्सटेंस है या मेथड उसको आप कैरी करते हैं, ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो वो भी आप डोपिंग में आएगा. एडमिनिस्ट्रेटिंग और अटेम्प्टिंग टू एडमिनिस्टर अ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस और मेथड टू एथलीट, ये भी डोपिंग में आता है. ठीक है, डोपिंग कितने तरीके का होता है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डोपिंग. क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग वी आर डूइंग. The one is performance enhancing substance and the second is physical methods. Performance enhancing substances में कुछ keywords होंगे, आप उनको लिख लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा. Performance enhancing substances are stimulants. Stimulants क्या होते हैं? That drug which enhances alertness and physical activity by increasing heart breathing rates and functions of brain. तो इसको stimulants basically stimulate the body both physically and mentally. So basically क्या करता है? It improves the reaction time, reduces the feeling of fatigue. They also increase aggression. अब इसके कुछ examples हैं stimulants का. Amphetamines, AMPHETAMINES, cocaine, COCAIN, एफिड्राइन एंड एंड्राफेनिल, ये 4 हैं आर कॉमनली यूज्ड स्टिमुलेंट्स बाय एथलीट्स. स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं? स्टिमुलेंट्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच इंक्रीजेस द हार्ट रेट एंड आपको मैंने बताया था कि जब हार्ट रेट बढ़ेगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में ज्यादा जाएंगे. ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा जाएगा तो क्या होगा? थकान कम महसूस होगा. थकान कम महसूस होगा तो जो भी एफर्ट हम कर रहे थे उसको कंटिन्यूड रख सकते हैं फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम.
लेकिन ये नेचुरल तो नहीं है, तो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड डोपिंग। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं? व्हाट आर स्टिमुलेंट्स? यस बेटा, आई गेस आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes, sir. तो ये चार उसके बाद एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स क्या करते हैं? मैंने बताया था कि व्हेन द मसल साइज ऑफ अ पर्सन इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ इज आल्सो इंक्रीजिंग। मान लो किसी का बाइसेप बहुत मोटा है तो उसके पंच में ज्यादा पावर होगी रदर देन एक किसी पतले दुबले इंसान के पंच में। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि उसका मसल ग्रोथ ज्यादा है, मसल साइज ज्यादा है तो मसल पावर भी ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स क्या करते हैं? स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ मसल, मसल के ग्रोथ को बढ़ा देते हैं, which help the athlete to train harder and recover rapidly. Train harder आप लिख सकते हैं, anabolic steroids increase muscle size, train harder, recover rapidly. आप ट्रेन हार्ड ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, जल्दी रिकवर भी कर सकते हैं, मतलब कि हम ट्रेनिंग को बहुत देर तक कर सकते हैं, लगातार कर सकते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी हम रिलैक्स हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो है एडवांटेज गेन कर रहे हैं उन पे जो नॉर्मल लोग हैं, इसलिए ये एक प्रोहिबिटेड मेथड और सब्सटेंस है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। क्या करता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स? हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ मसल, इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ मसल, हेल्प्स इन ट्रेन हार्डर एंड रिकवर रैपिडली। तो ये है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। क्या क्या इसके एग्जांपल है? ड्रोस्टेनोलोन, DROSTA, ड्रोस्टेनोलोन, NOLONE, ड्रोस्टेनोलोन, मेटिनोलोन and oxydronolone. These are three anabolic steroids. Is it done? Anabolic steroids का समझ आ गया? पेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड हॉर्मोन्स क्या होते हैं? बेसिकली आर सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। HGH जो होता है, ठीक है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, एंथ्रोपोएटिन और इंसुलिन, ये होते हैं हमारे पेप्टाइड हार्मोन्स। बेसिकली क्या करते हैं ये? These substances circulate in the blood. It can improve the growth of muscle, change the balance of hormones, and increase the production of RBC. RBC ज्यादा होगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगा। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगा तो फटीग कम हो जाएगा, थकान कम होगी, तो जल्दी रिकवर कर पाएंगे। होगा ना ऐसा? सर पर ये हार्मोन्स हमारी बॉडी नेचुरली भी बनाती है ना? नेचुरली बनाती है तो नेचुरली ना एक काउंट होता है कनक, लाइक आपके में फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं तो जो HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन लेट से 1 लाख होगा पर मिलीग्राम, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, और वो 3 लाख मिले, इसका मतलब क्या हुआ? आपकी बॉडी ने इतना तो नहीं प्रोड्यूस किया, उसका रेंज है 1 लाख टू 1.5 लाख, एक एग्जांपल है, ठीक है, एंड इट इज 3 lakhs. Is it a normal process by which it has raised to 3 lakhs? No, sir. No, sir. means you have taken something which is external, which is doping. So पेप्टाइड हार्मोन्स में जैसे इंसुलिन लेते हैं, आपने सुना होगा, कई बार लोग इंसुलिन लेते हैं। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड को थिन बना देता है, पतला बना देता है। उससे क्या होगा? हार्ट को कम प्रेशर पड़ेगा, जल्दी जल्दी वो पूरे ब्लड को पूरे बॉडी में पंप कर पाएगा, क्योंकि थिन हो गया ब्लड। उससे क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा, फ्यूल एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी ब्लड की, तो क्या होगा? थकान कम होगा। वो एरिया जो मैंने बोला कि जहां पे भी बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होगा, हार्ट रेट अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, ताकि सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द अफेक्टेड एरिया कैन बी सेंट। समझ आया बच्चे? यस सर। तो पेप्टाइड हार्मोन का पता चल गया क्या काम है? मसल साइज इंक्रीज करता है, रेड ब्लड सेल्स बढ़ा देता है, जिससे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, और उसके बाद हम जल्दी थकते नहीं है, हम लंबे ड्यूरेशन तक उस काम को कर सकते हैं। एग्जांपल आर एर्थोप्रोटीन, पोएटिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH एंड इंसुलिन। उसके बाद है बीटा 2 एगोनिस्ट। बीटा 2 एगोनिस्ट बेसिकली
are the drugs which is used in curing asthma. जो लोग अस्थमेटिक होते हैं वो इस बीटा 2 एगोनिस्ट का यूज करते हैं. बेसिकली it is found in the asthma inhalers. जो अस्थमा इनहेलर्स होते हैं ना उसमें मिलता है. करता क्या है ये? When we take in beta 2 agonist, it clears the air passages. जो सांस लेते हैं ना जब हम, तो एयर पैसेजेस नैरो होने की वजह से हमें सांस नहीं आता, तो हम कहते हैं कि दिस चाइल्ड इज अस्थमेटिक. तो वो बीटा 2 एगोनिस्ट लेने से एयर पैसेजेस को वाइड कर देता है. तो sufficient supply of oxygen can reach to the blood. When the sufficient supply of oxygen can reach to the blood, it get mixes with the blood, it reaches to the heart, then heart pumps the blood to the whole part of the body, it reaches to the affected area, it helps in curing, or it helps in getting rid of fatigue, and we can continue the effort which we were doing earlier. समझ आ गया? Beta 2 agonist. नार्कोटिक्स बेसिकली क्या करता है? इट रिड्यूसेस और एलिमिनेट फ्रॉम पेन फ्रॉम द इंजरीज. मान लो आपको इंजरी हो गया, एंकल स्प्रेन हो गया, आपने नार्कोटिक ले लिया, आपको दर्द नहीं होगा. इसका मतलब ये नहीं है कि वो एरिया अफेक्टेड नहीं है, वो है. जब आपका उसका असर खत्म होगा तो हो सकता है कि आप बेड रेस्ट पे चले जाएं, आप हो सकता है उसके बाद 6 महीने साल भर ना खेल पाए. तो ये काम करता है नार्कोटिक्स. नार्कोटिक्स बेसिकली एलिमिनेट्स और रिड्यूस पेन फ्रॉम द इंजरी. तो ऐसा करने से हमें लॉन्गर ड्यूरेशन तक परसिस्टेंट एफर्ट हम कर सकते हैं. इसके एग्जांपल्स हैं मोरफाइन. से ये हमारे हेरोइन. न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के साथ शेयर करता है ना, क्योंकि सर Yes. मतलब नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट जो है वो तो सिर्फ एथलीट्स को नहीं पकड़ता. ना देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ. वी आर टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स, तो हमें बस स्पोर्ट्स में ये क्या करता है उसके बारे में जानना है. बाकी रही नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट की बात, तो मैं बताता हूँ करता क्या है. स्पोर्ट्स के लिए ना वाडा एंड नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, दैट इज कॉल्ड नाडा. नाडा क्या होता है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी. तो जो नाडा है वो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, वाडा जो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है. तो दीज एजेंसीज आर देयर कि किसी पे भी कोई डाउट लगे, उसका परफॉर्मेंस जो है नॉर्मल से बहुत बेटर आ जाए, या कोई भी तरीके का एक्शन जो था वो शंका या शक के घेरे में आ जाए, तो उसको क्या करते हैं, वो उठा के उसका नार्कोटिक वो कर देंगे, डोपिंग कर देंगे. ब्लड सैंपल लेंगे, यूरिन सैंपल लेंगे और डोपिंग कर देंगे. तो जो नार्कोटिक्स होता है, जैसे ज्यादातर स्पोर्ट्स में ही लोग नार्कोटिक्स का इस्तेमाल भी करते हैं क्योंकि वो नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर देता है. वी डू नॉट फील पेन फॉर सम टाइम. मान लो मैं बहुत बढ़िया प्लेयर हूँ, मुझे छोटा सा कोई पेन है, तो लोग ले लेते हैं, लेकिन नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसका साइड इफेक्ट बहुत बुरा है. समझ आया बेटा? यस सर. तो ज्यादातर ये स्पोर्ट्स में यूज होता है नार्कोटिक्स. नार्कोटिक्स एग्जाम्पल थे मोरफाइन, हेरोइन और पैथाडाइन. उसके बाद ड्यूरेटिक्स. ड्यूरेटिक्स बेसिकली are not performance enhancing substances. Previously, people do not take it as doping, but it is considered as doping these days because what it does is it reduces the fluid from the bodies and helps in reduction of body weight. Some games and sports like wrestling, boxing, judo, or games in which weight category is there. आपने सुना होगा कि वेट कैटेगरी होता है रेसलिंग में, जूडो में, बॉक्सिंग में, कि एक 65 टू 67 केजी वाला 65 टू 67 केजी वाले के साथ ही फाइट करेगा. अब यहाँ देखो, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मोर इज द मसल साइज, मोर इज द एनर्जी. अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले आपको. यस बच्चे. Yes, sir. इसमें क्या होता है, जब ड्यूरेटिक्स लेते हैं तो हमारा मसल साइज उतना ही रह जाता है. एक्स्ट्रा फैट, लिक्विड, ये हमारे बॉडी से ड्यूरेटिक्स निकाल देते हैं, तो 2-2.5 किलो वेट कम हो जाता है. लेकिन मसल साइज उतना हुआ तो स्ट्रेंथ हमारी ज्यादा रहती है, तो हमें जो भी फेलो कॉम्पिटिटर्स होता है उस पर एडवांटेज मिल जाता है. इसलिए अब अगर आपके डोप टेस्ट में ड्यूरेटिक्स भी मिलते हैं तो यू आर कंसिडर्ड एज डोपिंग. ठीक है, यू हैव डन डोपिंग. करता क्या है? बेसिकली इट रिमूव्स फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी व्हिच हेल्प्स इन क्विक वेट लॉस. क्लियर है?
डेक्स्ट्रेन एंड ड्यूरेटिक्स आर एग्जांपल्स ऑफ ड्यूरेटिक्स। समझ आ गया सबको? यस बेटा, अंडरस्टूड। Yes, sir. The next is glucocorticosteroids. ये ड्रग्स रिलीव पेन फ्रॉम द फटीग एंड पेन। जो ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं ये हमारे बॉडी से पेन और फटीग, थकान और दर्द दोनों को रिलीव कर देते हैं, मतलब ठीक कर देते हैं। इससे क्या होगा, हमें पेन को सहने का शक्ति आ जाता है और प्रिपेयर्स लीड्स टू कंटिन्यू द एफर्ट। तो लॉन्गर ड्यूरेशन तक हम उस एफर्ट को करते रह जाते हैं। कैनाबिनॉइड्स क्या होते हैं? आपने सुना होगा नारकोटिक्स ब्यूरो ने 2-3 लोगों को तलब किया था, पकड़ा था फिल्म इंडस्ट्री से, जिसमें दीपिका पादुकोण भी थी, जिनके पास हशीश एंड मैरिजुआना मिला था। इट्स बेसिकली अ साइको एक्टिव केमिकल्स दैट हेल्प्स इन फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन। आप थके हुए तो हो, पर इसको लेने के बाद आप बहुत ज्यादा ना रिलैक्स्ड महसूस करते हो। तो hashish and marijuana are the examples of cannabinoids. Their use is competition is banned. What do you think will happen if the RBC of a person is increased? एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, what do you think will happen if the RBCs of a person is increased? कोई बताएगा मुझे क्या होगा? सब ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा हार्ट में। तो हार्ट में बढ़ने से क्या होता है? तो सर फिर Sir, ऑक्सीजन the ज्यादा मिलेगा। coordinate stamina will increase. सर ज़्यादा रेड ब्लड सेल सप्लाई होगी तो ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होगा और इससे परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। हाँ, because more is the RBCs, more is the oxygen and fuel carrying capacity. More is the capacity, very quickly will get rid of fatigue and will not feel pain also. तो ये कारण होते हैं ना। ये था हमारा केमिकल मेथड। मैंने बताया आपको क्या क्या स्टिमुलेंट्स बताया जो माइंड बॉडी को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, और जिससे हमें फीलिंग ऑफ फटीग जो है वो जल्दी नहीं आता है। एम्फेटामाइंस, कोकेन, एफिड्राइन एंड एड्रेफिनिल, ये इसके एग्जांपल्स है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स मैंने बताया था कि ग्रोथ ऑफ मसल करता है, ट्रेन हार्डर एंड रिकवर रैपिडली करता है। डोस्टेरोनोलोन, मेटेनोलोन एंड एक्सोड्रेनोलोन आर द एग्जांपल्स ऑफ anabolic steroids. Peptide hormones are basically बताया था produced by the glands in our body and it helps in muscle increase in muscle size and increase in red blood cells. तो आपको पता ही है red blood cells increase होगा तो क्या होगा? Drostanolone, metenolone and exodranolone, नहीं, peptide hormones are, sorry, erythropoietin, human HGH, human growth hormone and insulin. Now the next is beta-2 agonist. Beta-2 agonist is basically used in treating asthma. It's also found in asthma inhalers. It basically opens the air passages which becomes narrow to asthmatic person so that the supply of oxygen is reaches to the lungs in a sufficient manner. Then is narcotics. Narcotics basically reduce or eliminate pain from the injuries. So it allows athletes to make persistent effort. Morphine, cocaine and pethidine are the examples of narcotics. Diuretics are not considered as performance enhancing drugs, but as these are helpful in reducing the body weight by reducing or eliminating fluid from the body, it is considered as doping. Glucocorticosteroids relieves and fatigue and pain from the body, so you can do persistent effort. Cannabinoids are psychoactive chemicals that that gives you feeling of relaxation. Examples are hashish and marijuana. Is it done? कोई डाउट है बेटा अभी तक आप लोगों को परफॉर्मेंस एनहांसिंग सब्सटेंसेस में? No? Sir, what is the basic difference between stimulants and anabolic steroids? स्टिमुलेंट्स क्या करते हैं? स्टिमुलेंट्स हमारे बॉडी माइंड को स्टिमुलेट कर देता है। स्टिमुलेट का मतलब है एक्टिव कर देता है, अलर्टनेस ऑफ माइंड कर देता है। आप बिल्कुल पूरा थकान खत्म हो जाएगी, फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन कर देता है, आपको रिलैक्स महसूस होगा पर आप रिलैक्स्ड होगे नहीं। आपका माइंड डिस्टर्ब होगा लेकिन आपका माइंड अलर्ट हो जाएगा। लेकिन एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स क्या करते हैं?
ये मसल साइज को बढ़ा देता है। मसल साइज बढ़ा देगा तो मसल पावर बढ़ जाएगा। मसल पावर बढ़ जाएगा तो हम ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर सकते हैं और बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं। जैसे थक गए तो 5 मिनट बैठा एक नॉर्मल बंदा और आप 1 मिनट में रिकवर कर लोगे उस थकान से। तो ये इनके बेसिक वो है। स्टिमुलेंट्स क्या करता है, रिएक्शन टाइम घटा देता है। जैसे मान लो कि मैंने विसल किया, एक बच्चा तो तुरंत भाग लेता, दूसरा थोड़ा देर भाग। तो जो स्टिमुलेंट लेता है उसका अलर्टनेस ऑफ माइंड क्योंकि बहुत तेज होगा तो फटाक से रिएक्ट करेगा, उसका रिएक्शन टाइम घट जाता है। तो ये कॉमन डिफरेंसेस है। ठीक है बेटा, Yes, sir. Thank you, sir. वेलकम बेटा। नाउ आई एम टॉकिंग, एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज फिजिकल मेथड। क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग में बच्चों मैंने बताया था परफॉर्मेंस एनहांसिंग सब्सटेंसेस, जो अभी हमने ये 8 किए हैं। अब आ रहा है ब्लड डोपिंग, दैट इज फिजिकल मेथड्स ऑफ डोपिंग। क्या होता है ब्लड डोपिंग? क्या होता है ब्लड डोपिंग? is defined by World Anti-Doping Agency WADA as the misuse of techniques or substance to increase one's red blood cell count. मतलब the process or that method which helps in increasing the red blood cell count is called blood doping. क्या है blood doping? कोई मुझे बताएगा? What is blood doping? Anybody? या मैं दोबारा बताऊं आपको बच्चे? Yes. Am I audible? Techniques to increase one's red blood cell count. Yeah, blood doping is a method or the misuse of substances or techniques to increase one's red blood count is called blood doping. अब red blood count बढ़ेगा तो क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया है. So you can write that also when it is asked what do you mean by blood doping. ठीक है, अब आता है blood doping is further divided into two types. One is the autologous blood doping and the second is the homologous blood doping. ठीक है, क्लियर है? आप लिख सकते हैं फिजिकल मेथड में ब्लड डोपिंग क्या बता दिया? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड डोपिंग, वन इज द ऑटोलोगस और अदर इज द होमोलोगस। ठीक है, अब ऑटोलोगस में आपको बता रहा हूं, यूजुअली 2 यूनिट्स ऑफ एथलीट्स ब्लड इज टेकन सम वीक्स प्रायर टू कंपटीशन, कि किसी भी कंपटीशन के कुछ वीक पहले 2 यूनिट ब्लड उसी एथलीट का अपना ब्लड निकाल लिया जाता है। देन द ब्लड इज फ्रोजन अंटिल 1 or 2 days बिफोर द कंपटीशन। कंपटीशन के 1 या 2 दिन पहले तक उसको फ्रोजन कंडीशन में रखा जाता है। व्हेन इट इज इंजेक्टेड इनटू द एथलीट, उसके बाद कंपटीशन के 1-2 दिन पहले उसको एथलीट को इंजेक्ट कर दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग। ऑटोलोगस क्या है? कीवर्ड्स क्या हैं? ऑटोलोगस के कीवर्ड्स कोई बताएगा मुझे क्या है? मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, जस्ट पे अटेंशन। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग, इसमें क्या होता है? एथलीट ओन ब्लड 2 वीक्स पहले वो ब्लड को निकाल लिया जाता है। समझ आ गया? उसके बाद इसको until 1 or 2 days उसको फ्रोजन कंडीशन में रखा जाता है। क्लियर है? उसके बाद इंजेक्ट किया जाता है किसको? सेम एथलीट को जिसका ब्लड लिया गया था। क्लियर है? समझ आया बच्चे? Yes, sir. पहले क्या हुआ? ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग क्या होता है? एथलीट्स वन ब्लड 1 और 2 वीक्स पहले टेकन आउट हो जाता है, फिर उसके बाद until 1 or 2 days बिफोर द कॉम्पिटिशन फ्रोजन कंडीशन में रखा जाता है,
और उसके बाद उसको 1-2 दिन पहले इंजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद ये इंजेक्ट करने का क्या फायदा हुआ? सर वो रेड ब्लड सेल काउंट बढ़ गया और फिर परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गई। यस, रेड ब्लड सेल काउंट बढ़ जाता है। इसको ऑटोलोगस क्यों बोलते हैं? क्योंकि अपना ब्लड अपने आप को ही चढ़ाना होता है। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? इसलिए इसको ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग कहते हैं। पर्पस क्या है? इंक्रीज द रेड ब्लड काउंट। क्लियर है? What is autologous blood doping? Can somebody elaborate this? What is autologous blood doping? सर खुद का ही ब्लड लेना। Yes, beta. Anybody who can tell me what is autologous blood doping? Can you explain what is autologous? First है, when the athlete's own blood is taken out 1 or 2 weeks prior to the competition and it is kept for frozen until 1-2 days or before the competition and it is injected to the athletes is called autologous blood doping. Autologous blood doping वो blood doping है जिसमें एथलीट का अपना ही ब्लड कॉम्पिटिशन के 1-2 वीक पहले निकाल लिया जाता है, फ्रोजन कंडीशन में रख दिया जाता है और कॉम्पिटिशन के 1-2 दिन पहले उस ब्लड को उसी एथलीट को चढ़ा दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग। पर्पस क्या है? टू इंक्रीज द रेड ब्लड काउंट। होता क्या है? द बॉडी हैज द टेंडेंसी टू रिकवर व्हाट इज लॉस्ट। So when 2 units of blood is lost from any of the body, the body will automatically try to recover that depth. So the body will increase the red blood count automatically. And when before 2-3 days of the competition or 1-2 days of the competition, the 2-unit blood which was taken out will be injected back to the athlete, the red blood count will increase in numbers. क्योंकि बॉडी ने भी कुछ रेड ब्लड काउंट बढ़ा लिए और कुछ आपने इंजेक्ट भी कर लिया तो आपका रेड ब्लड काउंट बहुत ज्यादा बढ़ गया। समझ आ गया बच्चे? यस। नाउ द नेक्स्ट इज होमोलोगस ब्लड डोपिंग। होमोलोगस ब्लड डोपिंग क्या होता है कि किसी भी हेल्दी इंसान का फ्रेश ब्लड ले करके और एथलीट को दूसरे एथलीट को चढ़ा दिया जाता है। मान लो कि मैं एथलीट हूं, ठीक है आरव, और आरव एक हेल्दी बंदा है जिससे मैंने ब्लड लिया, अभी कभी फ्रेश ब्लड लिया। आपने ना 80s 90s के फिल्मों में ऐसा देखा होगा कि हीरो का एक्सीडेंट हो गया तो उसकी मदर या उसके फादर उसको फ्रेश ब्लड दे रहे होते हैं। दैट इज होमोलोगस ब्लड डोपिंग। लेकिन इसका मकसद क्या है? अब मैं हूं, मेरे बॉडी में जितना रेड ब्लड काउंट होने चाहिए वो है ना, और मैंने किसी हेल्दी बंदे का सेम ब्लड ग्रुप सब टेस्ट वेस्ट करके फ्रेश ब्लड जो डिजीज फ्री ब्लड है या ताजा ब्लड लेके मैंने इंजेक्ट कर लिया तो मैंने अपने रेड ब्लड काउंट बढ़ा लिया। होमो वर्ड आपने सुना होगा, आजकल बड़ा ट्रेंडिंग भी था, तो वहीं से ये होमो भी है कि मतलब किसी दूसरे बंदे का फ्रेश ब्लड ले करके किसी एथलीट को चढ़ा देना इज कॉल्ड होमोलोगस ब्लड डोपिंग। पर्पस इज द सेम, टू इंक्रीज द रेड ब्लड काउंट। सो ब्लड डोपिंग इज बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, होमोलोगस एंड ऑटोलोगस। मेरे जीन्स में है मैडम। समझ आ गया? ऑटोलोगस होमोलोगस समझ आ गया? यस सर। एक और है इसमें, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन कैरियर्स इज ऑल्सो a second method of blood doping which involves the use of artificial oxygen carriers. Hemoglobin oxygen carriers are chemicals or purified proteins which have the ability to carry oxygen. These are helpful in enhancing aerobic capacity. उसके बाद आता है जीन डोपिंग, और जीन डोपिंग के बाद हमारा आएगा साइड इफेक्ट। जीन डोपिंग क्या होता है? मैनिपुलेशन ऑफ सेल्स और जीन्स टू एनहांस द बॉडीज स्पोर्ट्स परफॉर्मेंसेस is called gene doping. Modifying genes enable faster reaction and
इंक्रीज फिजिकल स्ट्रेंथ, जब भी किसी बंदे का जीन्स को मॉडिफाई किया जाता है तो रिएक्शन जो है वो फास्टर हो जाता है और फिजिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है. बेसिकली दिस जीन डोपिंग इज based on the principle of gene therapy. The process of gene doping is likely to be used by athletes in future in an attempt to enhance their function of normal body cells. तो ये जीन डोपिंग होता है. अब आता है So what is gene सब्सटेंसेस. therapy? जीन थेरेपी में क्या होता है, जैसे मान लो किसी हेल्दी बंदे का जीन निकाल करके और किसी मरीज को या किसी उसको दिया जाता है ताकि वो रिकवर कर ले बहुत क्विकली, तो दैट इज कॉल्ड जीन डोपिंग. जीन डोपिंग समझ आ गया बच्चे? हाँ सर. कोई डाउट तो नहीं है जीन डोपिंग में अभी? सर जीन डोपिंग पता कैसे लगता है कि इस प्लेयर ने जीन डोपिंग की हुई है? एंटी डोपिंग एजेंसीज है ना, इनके पास बहुत सारे केमिकल्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारी मशीन्स हैं जिसके थ्रू ये तुरंत उसमें उनके ब्लड में केमिकल मिलाएंगे और बता देंगे कि भाई इसकी जीन जो है, जैसे मैंने बोला ना कि आपने देखा होगा कि आपका वो होता है सीबीसी, डॉक्टर लिखता है कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है, उसमें लिखा जाता है हेमोग्लोबिन 13 या 12 और 8, आरबीसीज इतना, डब्ल्यूबीसीज इतना. इन द सेम वे जीन का भी काउंट होता है कि एक इंसान में इतना जीन होना चाहिए. जब वो एनहांस होता है, बढ़ जाता है, तो उन्हें पता है कि नेचुरली कितना बढ़ता है, तो उससे अगर ज्यादा होगा, उस रेंज से ज्यादा होगा, तो उसको डोपिंग में काउंट करेंगे. क्लियर है बच्चे? यस सर. Substances prohibited सर in तो and out of जीन डोपिंग competition में पढ़ाई किया है. एथलीट के ही जीन्स Anabolic मॉडिफाई steroid, करते हैं peptide या फिर hormone, glucagonist, diuretics, hormones, metabolic manipulation, blood doping, gene doping, chemical physical manipulation, ये सारे जो है कंपटीशन में अलाउड नहीं है. जो मैंने आपको पढ़ाया, जीन डोपिंग पढ़ाया, ब्लड डोपिंग. केमिकल मैनिपुलेशन में क्या होता है कि जो भी वो दिया, जैसे मैंने बोला कि आपने किसी एनिमल का ब्लड दे दिया अपने ब्लड की जगह पे, या आपने टेम्पर कर दिया, अपना नाम उखाड़ के किसी दूसरे के सैंपल पे डाल दिया और अपना ब्लड के नाम पे किसी और का नाम डाल दिया, तो वो बंदा फंस जाएगा और आप फ्री हो जाओगे. तो इसको केमिकल और फिजिकल मैनिपुलेशन बोलते हैं. ठीक है, अब आ रहा है साइड इफेक्ट ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस. लास्ट टॉपिक है. सबसे पहला है कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट. जैसे कि आपने एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का सुना है कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स क्या करता है, मसल ग्रोथ को बढ़ा देता है, ट्रेन हार्ड और रिकवर रैपिडली करता है, मतलब कि ब्लड सप्लाई बहुत फास्ट होगा, तो कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट आता है. The regular as well as long-term use of anabolic steroids elevates the blood pressure and decreases high-density lipoprotein (HDL). High-density lipoprotein are also called good cholesterol or bad cholesterol. सुना होगा आपने, तो good cholesterol बोलते हैं. Use of steroids also increase the risk of heart और cardiac arrest. लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है क्योंकि कंसिस्टेंट यूज करने से हार्ट बार बार पंप करता है ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो वो नॉर्मल से ज्यादा होता है, तो वो भी तो थकेगा ना, तो हार्ट अटैक आ जाता है. एंडोक्राइनल इफेक्ट होता है इसका. एंडोक्राइनल इफेक्ट क्या करता है? इंक्रीज इन एग्रेशन, सेक्सुअल डिजायर एंड समटाइम लीड्स टू क्रिमिनल बिहेवियर. मेल बिकम इंपॉर्टेंट आप समझते हो कि क्या होता है. तो मेल becomes important, testicle shrinks, breast gets enlarged, sperm production reduces, and a man become bald. There are various side effects of female such as masculinization, excessive hair growth on the face and body, deepening of voice, enlargement of clitoris, abnormal menstrual cycle, or reduces breast size, and premature puberty among female children. These steroids can cause liver tumor, cancer and jaundice. तो ये साइड इफेक्ट्स है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के. एंडोक्राइनल इफेक्ट. साइकोलॉजिकल इफेक्ट इसके क्या पड़ते हैं? तो मूड स्विंग है. जैसे आपने अभी सुना होगा एक एक्टर डाइड बिकॉज ऑफ टेकिंग दीज टाइप ऑफ स्टेरॉइड्स एंड ऑल दैट. सुशांत सिंह राजपूत सुना आप लोगों ने? यस, Yes, sir. am I audible? Yes. सो इसमें होता क्या है, मूड स्विंग होता है. बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत दुखी हो जाएंगे, रोने लग जाएंगे, अरे मैं तो, मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है, अरे मैं तो किसी का फ्रेंड ही नहीं हूँ.
इस टाइप के थॉट्स आने लगे हैं, एग्रेसिव बिहेवियर हो जाएगा, गुस्से में आ जाएंगे, तुरंत डिप्रेस्ड हो जाएंगे, विड्रॉ कर लेंगे, अरे मेरे से नहीं होगा, मेरे बस की नहीं है यार, मैं कुछ कर ही नहीं पाता, मैं यूजलेस फेले हूँ, इस टाइप का सोच हो जाता है, दूसरे पे डिपेंडेंट रहने लग जाएंगे। स्टेरॉइड्स में कॉज सिग्निफिकेंट डिस्टर्बेंस इन द पर्सनालिटी ट्रेट्स, मतलब उनका जो है ना पर्सनालिटी ट्रेट्स, उसमें भी बहुत सारा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। स्टिमुलेंट्स, नार्कोटिक, पेप्टाइड हार्मोन, बीटा टू एगोनिस्ट, ड्यूरेटिक्स, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स एंड कैनाबिनॉइड्स, इनके साइड इफेक्ट आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। लाइक नार्कोटिक्स का होता है लॉस ऑफ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, एबिलिटी और प्रूडेंट जजमेंट का स्टिमुलेंट्स लेने से खत्म हो जाता है। उसके बाद बीटा टू एगोनिस्ट लेने से कॉज ट्रेम्बलिंग हो जाता है, हेडेक हो जाता है। ड्यूरेटिक्स लेने से वीकनेस आ जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लूइड बॉडी से निकल जाता है। ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेने से क्या होता है, हीलिंग ऑफ वुंड स्लो हो जाता है, घाव जल्दी भरता नहीं है, बॉडी में फैट डिपोजिशन अराउंड द नेक हो जाता है, ब्लड शुगर टेंड्स टू इंक्रीज, ब्लड शुगर बढ़ जाता है। कैनाबिनॉइड्स लेने से क्या होता है, कंसंट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन रिड्यूस हो जाता है। तो ये सब इसके साइड इफेक्ट है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम सर चैप्टर 10। प्रोहिबिटेड सब्सटेंस में सिर्फ उनके डेफिनेशन और फिर सीधा साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं ना, बीच में टॉपिक्स तो नहीं आ रहे ना? नहीं, प्रोहिबिटेड सब्सटेंस एंड देयर साइड इफेक्ट में सब्सटेंसेस प्रोहिबिटेड ऑल टाइम ये भी है, ये भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स क्या होते हैं ये बता ही दिया ना, आपको पढ़ा ही दिया है। तो क्या करते हैं, जैसे मान लो मैंने बताया था एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के बारे में आपको पढ़ाया था कि मसल साइज इंक्रीज कर देता है, ट्रेन हार्डर एंड रिकवर रैपिडली कर देता है, तो इसलिए ये बैंड है इन एंड आउट ऑफ कॉम्पिटिशन। पेप्टाइड हार्मोन एचजीएच है, एसीटीजीएच, एसीटीएच है, तो ये क्या हेलो मेरी क्लास चल रही है, तो ये क्या करता है, तो ये इंक्रीजेस मसल So ग्रोथ। we learn this definition of prohibited substances from prohibited substances and their side effect section or classification. यस, So from which part do we read it? सी कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन आपको बता दिया है कि इसका हिस्ट्री है, फिर कॉन्सेप्ट क्या है कि वर्ड जो है वो यूज्ड अनफेयरली इंप्रूव द वो है स्पोर्टिंग परफॉर्मेंसेस, फिर मैंने आपको बताया है नहीं कि सर, डेफिनेशन जो है इन प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस की, इनकी कहाँ से याद करनी है सर, कौन से सेक्शन से? 10.6 और 10.5? 10.5 10.6 दोनों से कहीं से भी कर लो, एक ही चीज, ज्यादातर 10.5 से ही है, 10.6 से तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। ये प्रोहिबिटेड सब्सटेंस जो है ना, ये क्या है करना, मैं आपको समझा देता हूँ। जो कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग, ये डोपिंग का डेफिनेशन मीनिंग है वो 10.5 पे है कि डोपिंग है क्या, डोपिंग कैसे मानते हैं कि डोपिंग है हुई है, ठीक है। और ये जो है ना प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस, कौन से सब्सटेंसेस जो प्रोहिबिटेड है, तो वो सब्सटेंसेस का लिस्ट है और उनके इफेक्ट है, क्यों सब्सटेंसेस जो है वो प्रोहिबिटेड है, क्या करते हैं वो सब्सटेंसेस, तो वो 10.6 पे दिया है, ठीक है बेटा। ओके सर। समझ आ गया ना। हर टॉपिक को पढ़िए, पीछे से क्वेश्चन आंसर्स देखने की जरूरत नहीं है, हर टॉपिक्स को पढ़ेंगे आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है या क्या करना है। ओके बच्चे? यस सर। यस बेटा। Sir, could you please share the PowerPoint presentation so that we quickly revise the topics? Wow, what an idea, Sarji. Definitely I'll try to send, but I think it is going to be the क्या बोलते हैं उसको, लिंक ओनली, क्योंकि ये मेरे उसमें शेयर्ड है ना, तो खाली लिंक ही शेयर कर पाता है, सो आई विल बी डूइंग दैट। ठीक है, हाँ, you may leave the class now. I'm sharing this with you people. WhatsApp, digital Thank education done. It's shared with you people. WPS Office complete Office suite with PDF editor. लिंक भेज दिया, आप वहां से पढ़ लें। ओके? Okay, thank you, sir. यस बेटा। Arav, you saying something? Is it not? Acha. Let me re-download it and then share it. The file link has expired. ये क्या कह रहा है?
Just a minute, beta. I'll check and I'll send it again. Okay, don't worry. Okay, welcome, beta.